Namaste everyone. So today is very important topic. Today is our 17th lecture and lecture taken by Mr. Jain. He's my senior and he also taught me many more in during my coursework. He was my teacher and he is my good friend also. He has qualified GRF and he's working in the project under the supervision of Dr. Ramesh in the sickle cell. So very talented person in the biomolecular area. So today he's going to teach you about the ELISA. Okay, how can you use ELISA in your yoga research? So welcome you, Mr. James. Please come and please start your session. Thank you so much, Rahul ji, for inviting me for the lecture. Okay, so Hari Om, Namaste everyone. First of all, like he has already introduced me, so I will just describe a little bit about my research and then we'll go with the topic like ELISA technique, which we can use for the as an molecule or to check on the molecular level what the changes is happening in our body when you practice yoga or you are giving any kind of intervention. My research topic is on sickle cell disease. So the effect of yoga based lifestyle intervention on sickle cell disease and what other changes can be happening or can happen in when we give the yoga intervention to the sickle cell patients. If like I know that you all must know about the sickle cell uh, disease, but just those who know for them, just those who don't know for them, I would just like to little bit give the introduction about the sickle cell disease. So it is a blood-related disorder, and it is a genetic disease which happens because of the changing in the one molecule. It is called hemoglobin. So in hemoglobin, we have four polypeptide chains um, polypeptide chains and that which is made up of two alpha chain. The hemoglobin is made up of two chains, two alpha chains and two beta chains. In beta chains, which is consist of 146 amino acid. On the 146 amino acid, on the position of the six, there is one protein. It is called glutamic acid, which converts into the valine. Because of the conversion of this one molecule, this sickling is happening. Their blood shape, generally our blood shape, it is just like a donut, circular, like full moon shape. But what happens in these patients, it becomes like a crescent shape. Crescent shape means it becomes like a half moon shape. So because of this half moon shape, it polymerizes, means um, it has an rigidity, or earlier it has an deformability. Deformability means it can change its shape and it can pass through any vessels. Like our RBC, if you see that it has a deformability, it can change its shape and it can pass through any vessels wherever it is required. But what happened in these patients, it cannot change because of the rigidity. There are some percentage of the um, sickling is happening in the body. It depends on the severity of the disease. So sometimes it is 10%, 20%, 30%, 40 and 50%. The more sickling is will be there, the more the severity of the disease will be there. The more severity will be there. Okay, so based on that, we have come across, there are many techniques, like ELISA is very old technique to find out what is happening on the molecular level. For an example, you want to check somebody's stress level. So you know that, okay, so to yoga releases the stress, but how it is release the stress? You'll come across with some questionnaire generally we use, but this questionnaire, what happens if you जैसे बोलें कि अगर आपसे कहा जाए कि
क्वेश्चनियर किसी से भरवाना है या फिर क्वेश्चनियर फिल कराना है, तो व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं कि आप खुद जानते हैं कि जेन्युइनली ऐसा होता है कि मे बी शायद अगर आपने 100 लोगों से भरवाया है तो 10 लोगों ने ठीक से भरा होगा और बाकी के 90 लोग क्या करते हैं, वो टिक 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 करके एंड दे फिनिश द होल क्वेश्चनियर. So because this is an qualitative study, but in quantitative study where we are having the blood samples and we want to check what is inside the blood, and when you are giving the intervention, what the changes is happening. Like for an example, somebody has diabetes, if you want to check their insulin level, or you want to check their the functioning of beta cells, or you want to check the molecule like pro-insulin. Like pro-insulin, there is one molecule which is telling the function of your beta cells कि कितना molecule बनेगा, कितना इंसुलिन बनेगा, और ये बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, तो कैसे होगा. तो उसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं, एलाइजा टेक्निक को. तो आप योगा इंटरवेंशन ले सकते हैं, खुद योगा इंटरवेंशन रखते हैं, मे बी अगर आप डॉक्टर हैं तो दे सकते हैं. किसी भी फील्ड में, अगर इफ यू वांट टू गो ऑन द टॉप ऑफ द फील्ड, किसी भी फील्ड में, चाहे वो योगा फील्ड हो, चाहे वो मोलिकुलर बायोलॉजी हो, चाहे किसी, यू नीड टू होल्ड द हैंड ऑफ द रिसर्च. अगर आप रिसर्च का हाथ पकड़ के आगे चलते हैं, then you will be on the top of among all the things. Why the SVSA is on the top of the all the institute all over the world? Because SVSA is more focused on the research, and he is continuously researching on many aspects of the disease, different तरीके की research और different तरीके के test और different तरीके की, क्योंकि research में आप क्या करते हैं, you always do something new, so you want to find something new, so it is based on your question. Or so we will have like if we'll finish early, so we can talk. Somebody has any idea about their research and what kind of molecules they can use. So if time permits, so we can also discuss with some of you about their research work, or what kind of parameters they can use for conducting the good or conducting the quality research. For quality research, you need a lot of evidence, so you can provide the evidence based on your based on the inputs, or based on the quantitative data which you can quantify, not the qualitative where you just give the perception or you give the suggestion it could be happen. But in quantitative, you have something in your hand, you have the data, you know, okay, you did the yoga, the stress level was 10 and now it is 15. For an example, hemoglobin. So hemoglobin, you want to check the hemoglobin, or you want to check that somebody's iron level or hemoglobin, it is increased or it is decreased. So you have given the intervention, some practices, some breathing, some pranayama, some meditation you are giving, and you have the hypothesis yoga is working and it will increase your hemoglobin. So that for an example, the normal range for the hemoglobin in a male, it is 13 to 17. For female, it is 12 to 16. So this is the slab. So you are checking, okay, earlier what was the, maybe some people, or if you are taking some kind of disease people, you want to check. So you have checked, okay, before it was 8, 9, 7, and then you have you have given the intervention. So you can check after the 3 month or 6 month or 1 year. So you can also check on the multiple points if uh, your pocket allows you, because these are the very expensive tests, and generally the one kit costs it's around somewhere, if you go with a good company, so it will cost around 40 to 50,000 rupees for one kit, and one kit you can do 40 samples or 40 samples. I will show you this plate also, that how does it look. Okay, so we'll go with the, I will just share my screen. So I will tell you that how does it look like. Okay, so my name is Zaim Saidi. I'm postgraduate in anthropology and postgraduate in yoga. So like
on what principle this ELISA test is based? So it is based on the colorimetry. So before doing the ELISA test, you need to understand on what principle this test is based, how and what it does, how it reflects. So the basic introduction about what is light, the light, like whatever we see, what is light? The light that we see is just a tiny region of electromagnetic spectrum which human eyes are capable of seeing, and this region is called visible light. जो भी चीज हमें दिखाई देती है, कैसे दिखाई देती है? बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसी की वजह से हमें कोई भी चीज दिखाई देती है, वरना हम कोई चीज नहीं देख पाए। क्यों हम देख पाते हैं? सो वेयर दिस लाइट कम्स फ्रॉम, ये लाइट कहाँ से आती है? ड्यू टू द फ्यूजन रिएक्शन इन द सन। सन के साथ में जो फ्यूजन रिएक्शन होती है उसकी वजह से ये लाइट जो होती है ये हमें दिखाई देती है। When two hydrogen atoms fuse, they form a helium molecule. जब दो हाइड्रोजन एटम आपस में मिलते हैं और फ्यूज होते हैं तो वो एक हीलियम मॉलिक्यूल को बनाते हैं। In this process, some masses are removed in the form of energy. क्योंकि एनर्जी इसीलिए हीट पैदा होती है। दिस एनर्जी इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। दिस इज पार्शली इलेक्ट्रिक एंड पार्शली मैग्नेटिक। पार्शली थोड़ी कुछ हिस्सा इसका इलेक्ट्रिक होता है और कुछ हिस्सा इसका मैग्नेटिक होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। So why can we see any object and how could we define colors? So how we can define the colors? Because um, uh, we see objects because of the light from the luminance object reflects of the object. Some of the color of the light are observed. कुछ जो कलर हैं जो लाइट के वो ऑब्जर्व हो जाते हैं, कुछ जो कलर हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है कि कुछ जैसे ये येलो कलर है और ग्रीन कलर है, ये रिफ्लेक्ट भी होता है। रेड कलर ये होता है, ये बिल्कुल जो ब्राइट कलर होते हैं जो बहुत ज्यादा तरीके से आपको जो है बहुत ज्यादा जैसे फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर है तो वो क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्ट होते हैं बहुत ज्यादा, आपको अलग से दिखाई देते हैं। कि 100 में अगर कोई आदमी लाइटर फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर की कोई अगर टी शर्ट पहने तो वो बिल्कुल अलग से दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो जो कलर होता है वो लाइट से रिफ्लेक्ट होता है। इसी प्रिंसिपल पे ये टेस्ट भी बेस्ड है। कैसे? अभी आगे हमें पता चलेगा, आगे हम जानेंगे इस चीज को। सो ओनली द कलर दैट आर नॉट ऑब्जर्व्ड एंड रिफ्लेक्ट and enters our eyes, this is the color we see. So why is the black color are hotter than the white color car during summer? क्यों होती है? क्यों? क्योंकि जो है जो ब्लैक कलर है ना वो रिफ्लेक्ट करती है, जो वो ऑब्जर्व करती है, और जो वाइट कलर है वो रिफ्लेक्ट करती है। तो जो लाइट है वो ऑब्जर्व नहीं होती है, क्योंकि लाइट में जो हमने अभी पहले भी पढ़ा था कि जो है इसमें जो हीलियम के मॉलिक्यूल हैं जिसकी वजह से हीट जो है प्रोड्यूस होती है। और तो क्या होता है इसमें, जो अगर गर्मी का मौसम देखें तो गर्मी के मौसम में जो होती है जो काले कलर की कार है वो ज्यादा हीट करती है इन द कंपैरिजन ऑफ वाइट कलर, क्योंकि वाइट कलर में क्या होता है जो लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, बट जो ब्लैक होती है वो ऑब्जर्व कर लेती है। इस वजह से जो है हमें ज्यादा दिखाई देती है। और इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट क्या कहते हैं 6 टाइप्स के जो है वो होते हैं लैम्प जिनको बोल सकते हैं, जो कि जो भी हमने जैसे कोई भी सैंपल लिया, ब्लड लिया, उसमें ऐड किया, ऐड करने के बाद हम उसके अंदर जो भी केमिकल्स डालने के बाद उसको हम चेक करना चाह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इस आपके ब्लड में कितना है, हम चेक करना चाह रहे हैं। तो जब लाइट उसमें से पास होगी तो पास होने के बाद जो है जो रिएक्ट करेगी उस लाइट के बेसिस पे हमें को पता चलेगा कि इसमें ये कितनी परसेंटेज है स्पेसिफिक मॉलिक्यूल की। सो अब आते हैं बेसिकली कि कैसे पता चलता है कि हमें, जैसे ये एक ट्यूब आपको जैसे दिखाई दे रही है, एक प्लेट दिखाई दे रही है, उसके अंदर ये कुछ येलो कलर के कुछ ब्लू कलर के जो वेल्स हैं इनको बोलते हैं वेल्स। तो ये 96 वेल्स होते हैं जनरली एक प्लेट में, ज़्यादा भी होते हैं कम भी होते हैं, बट जो जनरली है मैक्सिमम 80 to 90% वो 96 ही वेल्स होते हैं। जो फर्स्ट
2 होते हैं उसमें हम स्टैंडर्ड डालते हैं, और जो बाकी के होते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड इसलिए डालते हैं कि चेक करने के लिए कि ये भाई स्पेसिफिक रेंज है। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन की क्या रेंज होती है, मेल में 13 टू 17 होती है, फीमेल में 12 टू 16 होती है। तो क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड एक रेंज बनाता है। ओके, कम से कम कितना हो सकता है किसी का, हम इसने करके रखी है आई थिंक्स के ओके इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2, तो 2 से कम तो किसी का नहीं होगा। तो बहुत अगर किसी का जा सकता है 25 ले लिया, तो जो मैक्सिमम रेंज है वो इतनी है, और जो मिनिमम रेंज है वो 2 है। तो ये क्या होता है, ये दो जो फर्स्ट वेल्स होते हैं ये बना देते हैं स्टैंडर्ड। तो जैसे ये जो दो वेल हैं, तो ये जो दो वेल हैं ये जनरली हम स्टैंडर्ड के लिए ले सकते हैं। जैसे इन्हीं ने ये येलो येलो कलर के लिए हैं, तो ऐसे करके आप अलग अलग भी ले सकते हैं, बट इट इज़ बेटर कि आप फर्स्ट 2 लाइन में ले रहे हैं। और बाकी की जो 80 वेल्स बचते हैं, एक में ये 8 होते हैं, 8 वेल होते हैं, 8 वेल्स, और रेस्ट 80 बचते हैं। जो 80 बचते हैं उनमें हम सैंपल्स रन करते हैं, सैंपल डालते हैं। सैंपल डालने के बाद फिर उसमें एक लंबा प्रोसीजर होता है इसको टेस्ट को परफॉर्म करने का। लगभग एक टेस्ट को करने के लिए आपको 5 से 6 घंटे लगते हैं। तो मतलब एक पूरा दिन आपका चला जाता है पूरा एक टेस्ट करने में, उसमें आप 40 सैंपल्स रन कर सकते हैं। तो हम इसको डुप्लीकेट में करते हैं और कई बार ट्रिप्लीकेट में करते हैं। डुप्लीकेट मीन्स whenever we do in duplicates means we put the same sample in 2 wells, and sometimes we put the 3 samples in all 3 wells, so that is called triplicate, to find the accuracy and accuracy of the experiment. If you do in a duplicate means the same values will come. If you do in triplicate means you are doing one test 3 times and then in different wells, means it is more accurate. It depends on the some test and some experiment. Sometimes like we have the shortage of the sample, so what we can do, हम क्या करते हैं, हम जो है सिर्फ एक में ही करते हैं, कि डुप्लीकेट में नहीं करते हैं कई बार, बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द सैंपल, और मे बी वी हैव लेस बजट, नहीं है इतना पैसा। ओके ठीक है, तो चलो हम इसमें एक में भी कर सकते हैं, बट इट इज बेटर टू डू इन 2 wells. ओके, सो अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे कि द एंजाइम लाइक इम्यूनो ऑब्जर्वेंट ऐसे, or it is called ELISA, is a common laboratory technique which is used to measure the concentration of any analytes, usually एंटीबॉडीज और एंटीजन। दो चीजें जनरली हम इसमें चेक करते हैं, या तो हम एंटीबॉडीज चेक करते हैं या फिर हम एंटीजन करते हैं इन अ सॉल्यूशन और इन अ ब्लड के जो जो भी सॉल्यूशन है या ब्लड में क्या है, कितना है, कितनी एंटीबॉडीज और कितना एंटीजन है, उसकी क्वांटिटी को हम चेक करने के लिए इस टेस्ट को करते हैं। डेफिनेशन, एंटीबॉडीज ऑल्सो नोन एज द इम्यूनोग्लोबुलिन observant, or it is also called observated Ig. In a short form, we can say it is an Ig. Are the gamma globulin proteins found in blood and used by the immune system to identify and neutralize foreign objects such as bacteria and viruses. तो दो चीजें होती हैं इसमें, एक एंटीजन होते हैं और एक एंटीबॉडीज होती है। एंटीबॉडीज क्या होती है, हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस करती है। एंटीजन क्या होता है, वो बाहर से, जैसे कि अगर हम कोरोना का एग्जांपल लें, तो कोरोना में क्या होता है, कोरोना वायरस क्या है, वो एक एंटीजन है। और एंटीजन हमारी बॉडी में आ जाता है, आने के बाद जो है उसमें टाइम लगता है बॉडी को एंटीबॉडीज बनाने में, क्योंकि वो ये नया वायरस है। इसमें तो कहा कि अब नया ओमिक्रॉन आ गया वायरस, सो ओमिक्रॉन आ गया मतलब नया वायरस आ गया, तो उसके लिए बॉडी को एक नई एंटीबॉडीज बनानी पड़ेगी। क्योंकि जितने भी वेरिएंट्स होते हैं, जैसे इसमें दिखा, इसमें एक ऐसे बना हुआ है गोल गोल कर का ये, तो क्या होता है उसमें वो चेंज हो जाता है, वो अपना वेरिएंट खुद का चेंज कर देता है, शेप चेंज कर लेता है, तो उसमें ये जाके फिट नहीं हो सकता। जैसे ये इसमें फिट हो गए एंटीबॉडीज, उसमें क्या होता है कि फिट नहीं होती है, नहीं फिट होती है, तो फिर जो है देन वी नीड टू the body need to produce a new antibodies. Okay, so what is antigen? A substance that when introduced into the body stimulate the production of the antibodies. Or immunoassay, a laboratory techniques that make use of the binding between an antigen and its
homologous antibody to identify and quantify the specific antigen or antibodies in a sample. तो बेसिकली उसकी यही डेफिनेशन है जो हमने पहले अभी डिस्कस किया कि एंटीजन क्या होता है, इम्यून एसे क्या होता है, टेक्निक होती है जो लेबोरेटरी में यूज करी जाती है फाइंडिंग के लिए। कोई भी आप वायरस चेक करना है, वायरस चेक कर सकते हो, कोई एंटीजन चेक करना है, कोई प्रोटीन चेक करना है, तो आप इसको इस टेक्निक को यूज करके आप चेक कर सकते हो। जैसे हीमोग्लोबिन है, वो प्रोटीन है, प्रोटीन आप हीमोग्लोबिन को चेक करना चाहते हो तो वो आप इस टेक्निक के जरिए चेक कर सकते हो कि इसमें जो है स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन है, आपको चेक करना है। आपने जो है एंटीबॉडीज ली, एंटीबॉडीज के साथ में रिएक्शन करी, उसको बेल में डाला, ब्लड सैंपल को डाला, उसके साथ में कुछ एंटीबॉडीज आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, वो जाके स्पेसिफिक उसके साथ में बाइंड करती हैं, तो वो आप करके यू कैन go through it. So antigen, what is antigen and what is antibodies? Antigen, ये जो इसमें नीचे वाला जो वाई कलर शेप का आपको दिखा रहा है, येलो कलर का, इसको बोलते हैं एंटीबॉडीज, और ये जो ऊपर है ये एंटीजन है। एंटीजन जो होता है वो स्पेसिफिक एक साइज का होता है जो जाके आपकी एंटीबॉडीज से बाइंड करता है। जब ये बाइंड करता है तभी हम उसमें फिर ऐड करते हैं कलर, उसको टीएमबी बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं, तो उसको तब जाके हम उसको कलोरोमेट्री प्रिंसिपल के बेस पे उसमें से लाइट पास होती है, तो लाइट बताएगी कि इसमें कितनी ज़्यादा रिएक्शन हुई है, कितने एंटीजन और एंटीबॉडीज आपस में मिले हैं और मिलके इसकी क्या क्वांटिटी है, उसकी क्वांटिटी को लगभग वो अप्रॉक्सीमेट डिटरमाइन कर लेता है, बता देता है। Come to the definition, analytes. What is analytes? The sample being analyzed, and in immunoassay, the analytes is either antibody or antigen. या तो वो एंटीबॉडी होगा या फिर वो एंटीजन होगा, दो चीजें हो सकती हैं। जैसे इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि क्या है, यहाँ पे एंटीजन है और एंटीबॉडीज हैं और इसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं। तो जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं चिकन पॉक्स का, जो चेचक होती है, तो उसमें क्या होता है, उसका टीका लगाया जाता है। तो टीका क्या है, वो एंटीबॉडीज हैं, वो एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में डाल दी जाती हैं कि जब कभी ये चिकन पॉक्स का वायरस आपके पास आएगा तो ये बॉडी जो एंटीबॉडीज है इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगी। तो क्या करेगी एंटीबॉडीज कि आगे उस जो स्पेसिफिक पैथोजन है, जो एंटीजन है, उसके साथ में बाइंड करके उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो उसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत कम होगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए फाइट करने के लिए ये एंटीबॉडीज बॉडी में ऑलरेडी हैं। तो इन एंटीबॉडीज को बनाने में बॉडी को टाइम लगता है। तो जब भी कभी कोई पैथोजन आता है तो इसके पास, बॉडी के पास एक याददाश्त मेमोरी होती है। तो अब जैसे नया वायरस कोई आया, जैसे इसमें ये एक ग्रीन कलर का दिया न्यू पैथोजन, न्यू पैथोजन को आप कोरोना वायरस समझ सकते हैं कि नया ये कोरोना वायरस आ गया। अब इसके लिए जो है बॉडी को उसके बारे में, उसके शेप के बारे में, उसके साइज के बारे में कोई एंटीबॉडीज इसने अभी तक बनाई नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम वैक्सीन लेते हैं। जो वैक्सीन दी, तो वैक्सीन क्या है, ये एंटीबॉडीज है वो आपके अंदर डाल दी गई। डालने के बाद अगर कभी आपका कांटेक्ट हुआ इस पैथोजन से या आया इंटर किया आपके बॉडी में, तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज हैं, तो क्या करेंगे, इसको किल कर देंगे। तो जो सीवियरिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, तो डेथ के चांसेस कम होते हैं। वरना ये बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे और बॉडी को टाइम लगेगा एंटीबॉडीज बनाने में। तो डिपेंड करता है कि किसी की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए कहते हैं योगा से इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो बढ़ जाती है तो कैसे बढ़ जाती है इम्यूनिटी, बढ़ी तो बढ़ने के बाद तो एंटीबॉडीज का जो प्रोडक्शन है वो भी फास्ट हो जाता है बॉडी का। फास्ट बढ़ हो गया एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन, क्योंकि आप योगा कर रहे थे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, हाई थी, तो जो आपके अंदर कोई भी पैथोजन या बाहर से कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया अगर आया तो आने के बाद क्या करेगी, बॉडी उसको किल कर देगी, मार देगी। तो कोई भी डिसीज नहीं होगी, किसी चीज की भी सीवियरिटी नहीं होगी ज्यादा, वो आसानी से ठीक हो सकता है। तो हाँ, the antibody and immunoglobulin are specialized immune protein produced because of the introduction of an antigen into the body। कि कोई भी एंटीजन जो है जब हमारी बॉडी में या वायरस कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है, which possesses the remarkable ability to combine with the some antigen that triggers its production, specifically affinity। So the antibody recognizes and bind the antigen, determine the region of the antigen।
तो कैसे करते हैं इसको, जैसे कि ये एक एंटीजन है, तो ये सेम चीज है, दोबारा से फिर से एक एग्जांपल में समझाया जा रहा है कि ये एंटीबॉडी है और ये एंटीजन है। तो ये जो आएगा, ये आने के बाद ये इसी के जैसे इसमें और भी ये बहुत सारी एंटीबॉडीज हैं बॉडी में टहल रही हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं। और हाँ, ये जैसे इसके डिफरेंट डिफरेंट शेप हैं, तो शेप डिफरेंट होने की We वजह से, cannot see the slide. okay, I can see because I am joining with that other phone also. Can you check your network? Other people, anybody can unmute and tell me whether they are able to see my slides or not. Yes, we can see Yes, sir. Yes. Yeah, because I'm joining with the two different devices with a different network, so I know that whether my slide is moving or not. So you please check your internet connection. Okay. Okay, sir. Sorry. Okay, it's okay, no problem. Okay, so क्या होता है कि ना इसमें कि ये डिफरेंट डिफरेंट साइज की एंटीबॉडीज हैं जो, या एंटीजन हैं, तो और एंटीबॉडीज के भी साइज होते हैं, तो स्पेसिफिकली आके एक दूसरे के ऊपर बाइंड होती हैं। ऐसे करके हमारी बॉडी में 28,000 प्रोटीन्स हैं और सबके अलग अलग जो है जीन्स हैं और सबके अलग अलग फंक्शंस हैं। हमारी आँख में जो जीन है आईज में, वही सेम हमारे पैनक्रियाज में भी है, बट उनका क्या होता है, एक्सप्रेशंस होता है। तो एक्सप्रेशन मतलब कि वो जो आँख में जो जीन्स हैं वो कुछ 4,000 5,000 जो एक्सप्रेस हैं, उनकी वजह से ही हम देख पाते हैं। वही सेम इंफॉर्मेशन, सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे पैनक्रियाज में भी है, बट उसकी वजह से जो है हम नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे एक्सप्रेस नहीं है, इसलिए हमारा पैनक्रियाज रो नहीं सकता है और आँखें जो है हमारी इंसुलिन नहीं बना सकती हैं, बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। इंफॉर्मेशन उनके पास सारी है, सारी चीजें वो कर सकते हैं, बट एक्सप्रेस नहीं है, क्योंकि सबके अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन है। तो antibody production, so specific antibodies are produced by injecting an antigen into a mammal such as mouse, rat, rabbit, and small quantities antibodies and big quantities we use। कि एंटीबॉडीज कैसे बनती हैं, ये इनको क्या बनाने का तरीका क्या होता है। तो अगर बहुत छोटे अमाउंट में चाहिए, कोई छोटी मोटी डिजीज है उसके लिए अगर किसी को चाहिए, तो वो कैसे बनती है चेक करने के लिए, वो माउस से बनती है या तो रैट से बनती है या तो रैबिट से बनती है। उनकी बॉडी में डाल के फिर उससे उनका निकाल के सीरम, फिर उसको सेपरेट करके बना लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में चाहिए होती है तो कैसे बनती है ये एंटीबॉडीज, गोट के जरिए, शीप के जरिए, हॉर्स के जरिए। जब बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में एंटीबॉडीज चाहिए होती है तो उसको क्या करते हैं, ब्लड को आइसोलेट करते हैं इन एनिमल में से निकाल के। जो भी आप कोई भी वैक्सीन लेते हैं उसमें क्या होते हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, तो वो एंटीबॉडीज इन्हीं किसी एनिमल में से बनाई गई होती हैं। Polyclonal antibodies or फिर multiple antibodies that binds to the same antigen in the serum, which can now be called antiserum. So antibody protection क्या होता है, यही सेम चीज है। To obtain antibodies specific for a single antigen, antibodies secreting lymphocytes are isolated from the animal and immortalized by fusing them with the cancer cell line. So these fused cells called hybridoma, and it will continually grow and secrete antibodies in culture. So signal hybridized cells are isolated and diluted cloning. So this is the whole like procedure, like how we produce our antibodies protection, is how it is happening. So it is not that much of relevant for you being a yoga student, or being, if you want to do an experiment, it's still it is not relevant. So you should know, बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे एंटीबॉडीज बनती है, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। दैट्स इट, इट्स जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन यू शुड नो, इट इज नॉट दैट मच ऑफ रेलेवेंट फॉर यू। जी, उसमें इसका एक एग्जांपल दिया हुआ, कैसे रैट से लेते हैं, निकालते हैं उसको, कैसे क्लोन करते हैं, क्लोन करके फिर उसको बना के फिर जहाँ पे भी जैसे भी रिक्वायरमेंट होती है उसको एंटीबॉडीज को देते हैं, उसके जरिए से कोई भी
पता लगाते हैं। अब आते हैं एलाइजा टेक्निक के बारे में कि ये प्रोसीजर था कि पूरा एंटीबॉडीज और एंटीजन के बारे में जब तक नहीं समझेंगे तब तक ये टेक्निक नहीं समझ में आएगी कि क्या होती है। So it is a biochemical technique used mainly to immunology to detect the presence of an antibody or antigen. Antibodies है तो कोई antibodies आपको पता लगानी है कि किसी बॉडी में कितनी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है, तो उसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि हाँ बॉडी में वायरस है, कि एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी है जो कोरोना के लिए ही बनाई जा रही है वायरस की, तो वो उसका प्रोडक्शन बॉडी में ज़्यादा हो रहा है, तो आप उसके जरिए भी पता लगा सकते हैं कि हाँ बॉडी में ये वायरस है, उसकी वजह से इतनी ज़्यादा एंटीबॉडी बॉडी प्रोड्यूस करती है, वरना वो नहीं प्रोड्यूस करेगी। और सेम एंटीजन के साथ में ये वायरस अगर बॉडी में आ गया तो वायरस को ये वायरस के जरिए से पता लगा सकते हैं कि जो है कि बॉडी में कितनी है, दोनों के जरिए से पता सकती है। सो दैट टेक्निक इज डिवाइडेड इनटू 3। ये 3 तरीके की टेक्निक होती हैं। इसमें पहली जो होती है कॉम्पिटेटिव होती है, एक सैंडविच एलाइजा होती है और एक इनडायरेक्ट एलाइजा होती है। तो कॉम्पिटेटिव एलाइजा, सैंडविच एलाइजा एंड इनडायरेक्ट एलाइजा। सो सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली टेक्निक है वो है सैंडविच एलाइजा, और कॉम्पिटेटिव भी यूज होती है और इनडायरेक्ट भी यूज होती है, बट इतनी ज्यादा नहीं होती है। जो मोस्ट पॉपुलर 80% वो है सैंडविच एलाइजा टेक्निक। क्या होती है, पहले कॉम्पिटेटिव के बारे में पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज में आपस में कंपटीशन होता है। इसमें कंपटीशन होता है और जैसे इसमें मेंशन है कि इसकी डेफिनेशन में द लेबल एंटीजन competes for primary antibodies binding sites with the sample antigen which is unlabeled. Therefore, the more antigen in the samples, the less labeled antigen is retained in the well and the weaker the signal. कि जब हम इस टेक्निक को परफॉर्म करते हैं तो इसमें जो कलर है, जो जब हम फर्स्ट स्लाइड में जैसे हमने देखा था उसमें येलो और ब्लू कलर था, तो वो जो कलर की जो वो होती है मात्रा होती है ना, तो वो जब इसमें बहुत ज्यादा होगा तो कलर कम होगा, और जब बहुत ज्यादा कलर होगा इसका मतलब ये उसमें कम होगा। तो इसमें लिटिल बिट डिफरेंट होता है कि उल्टा होता है कि अगर लेस कलर है इसका मतलब वैल्यूज बहुत हाई हैं, और अगर बहुत ज्यादा कलर है इसका मतलब कुछ भी नहीं है आपके सैंपल में, बिल्कुल खाली है। तो ये थोड़ा उल्टा होती है एलाइजा के कंपैरिजन में, उसमें सैंडविच के कलर कंपैरिजन में। तो अब आते हैं सैंडविच पे। तो द एलाइजा प्लेट इट इज कोटेड विद द एंटीबॉडीज टू डिटेक्ट द स्पेसिफिक एंटीजन। कोई स्पेसिफिक एंटीजन आप चाहते हैं, कोई टारगेट प्रोटीन हम देखना चाहते हैं, तो आप इस टेक्निक के जरिए उसको देख सकते हैं। उसमें एंटीबॉडीज डालेंगे, डालने के बाद इसमें जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जैसे ये एक प्री कोडेड एंटीबॉडीज थी, आपने प्लेट में शरीर अपना सैंपल डाला तो सैंपल में जो भी एंटीजन है वो आगे से बाइंड करेगा। उसके बाद फिर एक डिटेक्शन एंटीबॉडीज आप डालेंगे उसमें, जो उस एंटीजन के ऊपर जाके बाइंड करेगा। इन बिटवीन हमें बहुत सारे वॉशिंग प्रोसेस होते हैं, हमें वॉश करना होता है, टाइम देना होता है। उसके बाद फिर एक एचआरपी एंटीबॉडीज आती है, इसी एचआरपी को हम उसमें ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद फिर जो है, क्योंकि ये बेसिकली प्रैक्टिकल है, ये सारा चीजें प्रैक्टिकल है, बट ये कि थोड़ा बहुत आपको जब आइडिया लग जाएगा तो प्रैक्टिकल करना बहुत आसान हो सकता है आपके लिए। तो ये टेक्निक जो होती है वो मेनली ये इसको पढ़ के समझना बहुत मुश्किल है, जब आप करेंगे करके समझना इसको बहुत आसान है। बट ये कि थोड़ा बहुत उसके बारे में पता होगा तो करना आसान होगा कि भाई हाँ आपने पता है इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है या तो एंटीजन चेक करेंगे या एंटीबॉडीज चेक करेंगे, दो चीजें आपको पता है कि हाँ ये इसमें हम ये कर सकते हैं। तो ये ऐसे करके आपको अलग अलग जो है इसमें वेल्स होते हैं, छोटे छोटे छोटी छोटी शीशियाँ होती हैं, तो उसमें आपको डिटेक्शन एंटीबॉडी मिलेगी, आपको एचआरपी मिलेगी, आपको टीएमबी सबस्ट्रेट मिलेगा, कैप्चर एंटीबॉडीज जो होती है वो मिलेगी। तो ये अलग से मिलेंगे और बीच बीच में आपको ये डालना होता है सीरम के साथ में, फिर 1 घंटे के लिए छोड़ देना होता है, फिर इसको वॉश करना होता है, फिर डालना होता है डिटेक्शन, फिर उसको वॉश कर देना होता है। एक वॉश बफर होता है, उससे वॉश करके फिर से दोबारा से फिर 1 घंटे के लिए डालना होता है। तो ऐसे करके 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा करके इस टेस्ट को ऐसे करते हैं, और फिर जो भी आपको जो भी उसमें उसकी जितनी भी क्वांटिटी होती है वो आपको पता चल जाती है कि कितनी उसमें क्वांटिटी है। सो सैंडविच एलाइजा prepare a surface to which a known quantity of a capture antibodies is bound. So block any non-specific binding sites on the surface. Apply the antigen containing sample to the
प्लेट। तो क्या करते हैं हम इसमें कि अगर हमें कोई भी सैंपल में हमें चेक करना है कि भाई एक चीज क्या है, क्योंकि ब्लड में तो बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीजें आपस में आके मिल भी सकती हैं, तो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग भी हो सकती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए वॉशिंग प्रोसेस होता है, वो हमें फॉलो करना होता है। नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग के लिए जो है हम वॉशिंग करते हैं, और वॉशिंग बहुत अच्छे से हमें करना चाहिए इसमें कि जो है जब भी आपने डाला 1 घंटे वेट करने के बाद फिर से वॉश वापस आपने उसको प्लेट को वॉश करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से करना चाहिए, बहुत अच्छे से करना होता है। अगर वो हम अच्छे से नहीं करते हैं तो क्या होता है कि कई बार नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है, जो और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं वो आके यहाँ आपस में ऐड हो जाती हैं, तो उसमें अगर वो आपस में ऐड हो गई तो क्या होता है, वैल्यूज बहुत ज़्यादा आ जाती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल के हीमोग्लोबिन आपका जो एक रेंज है, तो या फिर इंसुलिन है, तो इंसुलिन के लिए रेंज मान में कितने बहुत 600-700 हो सकती है कि आप मिनिमम 50 हो सकती है, 50 से लेके आप 700 ले ले, उससे भी अगर ज्यादा 1000 में चली जा रही है, 2000 में चली जा रही है, इसका मतलब कि जो है ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे हीमोग्लोबिन है, किसी का 35 चला जा रहा है, 36 चला जा रहा है, नॉर्मल रेंज तो इतनी है, अगर इतना चला जा रहा है तो इसका मतलब कुछ आपने एक्सपेरिमेंट गड़बड़ कर दिया, तो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग हुई, वॉशिंग प्रोसेस ठीक से नहीं हुआ, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ हो गया, जिसकी वजह से वो रिजल्ट नहीं आ पा रहे जो आने चाहिए। So wash the plates so that unbound antigen is removed. जो भी unbound antigen है वो बाहर निकल जाए इस प्लेट से, वो उसमें ना रह जाए। अगर वो उसमें रह जाएंगे तो जब आप ऐड करेंगे टीएमबी तो कलर उसमें दिखाई देगा ज़्यादा, जो क्या होगा, नॉन स्पेसिफिक होगा। Apply enzyme linked primary antibodies as detection antibodies which also bind specifically to the antigen. Wash the plate so that the unbound antibody enzyme conjugates and removed. जो अनबाउंड है वो बाहर निकल जाए और उसको हम रिमूव कर दें वॉशिंग प्रोसेस के जरिए। Sandwichalizer applied a chemical which is converted by the enzyme into a colored product. Measure the absorbency of the plate wells to determine the presence and quantity of antigen, के कितना जो है जो प्रेजेंस है उसमें एंटीजन या एंटीबॉडीज की, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं उसको। जैसे इसमें ये सैंपल है, हमने सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद इसको हमने प्लेट में डाला, प्लेट में डाला सॉलिड फेज, फिर क्या किया, इसमें बहुत सारी चीजें अलग अलग आपको दिखाई दे रही हैं, जो ब्लड के साथ में बहुत सी अलग अलग चीजें हैं। बट क्या होगा, जो आप स्पेसिफिक जैसे रेड कलर का जो है ये टारगेट एनालाइट्स जो भी आप यूज करना चाह रहे हैं, मानो फॉर एग्जाम्पल आप योग निद्रा का इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं कि मेलाटोनिन पे, मेलाटोनिन हार्मोन, आप कह रहे हैं कि योग निद्रा करो या भ्रामरी प्राणायाम करो, करने के बाद आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। ओके, आएगी, मान लिया आएगी, कैसे आएगी, कैसे आप उसको प्रूव कैसे करेंगे? आप कह रहे हैं कि ठीक है हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो वाइब्रेशन होता है सर में, और वाइब्रेशन होने से पीनियल ग्लैंड होती है जो वो स्टिमुलेट होती है, पीनियल ग्लैंड क्या करती है, वो मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट करती है। तो मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट होगा तो वो आपकी स्लीप क्वालिटी को अच्छा करता है। अच्छा ठीक है, मान लिया मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट करता है, स्लीप जो आपकी स्लीप की क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्लीप की क्वालिटी अच्छा करता है। ओके, तो मेलाटोनिन को हम कैसे चेक करेंगे? मेलाटोनिन को हम इस टेक्निक के जरिए चेक कर सकते हैं कि आपने योगा किसी को कराने गए, किसी को स्लीप की प्रॉब्लम थी, आपने किसी को इंसोमिया था या फिर कोई भी स्लीप की से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम थी, नींद नहीं आती थी, आपने क्या किया, आपने कहा कि ठीक है हम आपको भ्रामरी प्राणायाम कराएंगे और योग निद्रा कराएंगे, जो भी इंटरवेंशन आप देना चाह रहे हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम कराएंगे, जो भी आपको लगता है कि नींद के लिए जो है जो जो आसन और प्राणायाम और क्रिया जो भी बताई गई है वो आपने सारी चीजें ऐड कर दी। ऐड करने के बाद आपने कहा कि चलो ठीक है, पहले हमने उनका टेस्ट ले लिया कि अभी क्या कंडीशन है इनके मेलाटोनिन की, और फिर हमने 1 महीने बाद या 3 महीने बाद या 6 महीने बाद दोबारा से फिर उनका 6 महीने योगा कराया, योगा कराने के बाद फिर हमने फिर से चेक किया, तो अब जो मेलाटोनिन के लेवल है तो हमने चेक किया कि वो बढ़ गया। तो कैसे चेक करेंगे? इसी टेक्निक के जरिए चेक कर सकते हैं कि और बहुत रिलायबल है, इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इस टेस्ट की एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हम
ये कोई आदमी इसमें झूठ नहीं बोल सकता है कि हम ठीक है, हाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर क्वेश्चन यार किसी और ने भर दिया, तो इसकी क्या होती है, रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद आपने ऐड किया, ऐड करने के बाद फिर आपने वॉश किया, वॉश करेंगे तो फिर सारी जो अलग अलग चीज़ें थी वो सब धुल जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। तो सिर्फ जैसे मेलेटोनिन रहेगा, मेलेटोनिन के प्रोटीन है, एंटीबॉडीज है, एक दिया ऐसे करके हज़ारों लाखों की क्वांटिटी में भी हो सकता है। तो आपने देखा कि हाँ इतना है, उसके बाद फिर क्या किया आपने, उसके ऊपर आपने ऐड किया, आपने जो है डिटेक्शन एंटीबॉडी ऐड करी। डिटेक्शन एंटीबॉडी ऐड करने के बाद आपने उसको फिर 1 घंटे के लिए रखा, फिर वॉश किया, वॉश करने के बाद फिर आपने जो है उसमें एचआरपी ऐड कर दिया। एचआरपी ऐड करने के बाद फिर आपने सबस्ट्रेट ऐड किया। सबस्ट्रेट ऐड करने के बाद आपने उसकी रीडिंग ले ली। जब सबस्ट्रेट ऐड कर लेंगे तो ये जो स्पेसिफिक बाइंडिंग्स हैं ये आपस में सब बाइंड हो गए। बाइंड होने के बाद फिर जब आप उसमें कलर डालेंगे, कलर जो टीएमबी उसको बोलते हैं, जब वो आप कलर डालेंगे तो वो कलर बताएगा कि इसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, पहले कितनी थी, अभी कितनी है और कितनी होनी चाहिए। तो उसके जरिए हम पता लगा सकते हैं एकदम लेमैन लैंग्वेज में। उसके बाद इनडायरेक्ट एलाइजा टेक्निक होती है, द प्रोटीन एंटीजन टू बी टेस्टेड फॉर एन एड इनटू ईच सेल ऑफ एलाइजा प्लेट वेयर इट इज गिवन टाइम टू adhere to the plastic through charge interactions. A solution of a non-reacting protein is added to block any plastic surface in the well that remains uncoated by the protein antigen. तो उसमें क्या करते हैं डायरेक्ट एलाइजा में एक के बाद एक, इसमें कोई वॉशिंग प्रोसेस ज़्यादातर नहीं होता है, उसमें सिर्फ आपको ऐड करना है और ऐड करके जो है उसमें क्वांटिटी को सारी चीज़ें ऐड करने के बाद फिर वो जो बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग होने के बाद फिर आपको उसकी वैल्यू जो है वो ले लेनी होती है। जो एलाइजा प्लेट रीडर होता है या प्रिंसिपल ऑफ क्लोरोमेट्री का जो प्रिंसिपल है, इसके बेस पे एक एलाइजा प्लेट रीडर टेक्निक जो है वो बनाई गई है, इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये सिविल में दिखाया गया है कि इसमें सारी चीज़ें ऐड करते गए, सबस्ट्रेट ऐड किया, टीएमपी ऐड किया, ऐड करने के बाद फिर ले लिया, तो उसमें ऐसे करके ये कलर आ जाता है। तो कलर आ गया, उसकी फिर आपने रीडिंग ले ली, तो ये कलर बताता है कि इसमें कितनी क्वांटिटी है स्पेसिफिक एंटीबॉडीज की, एंटीजन की, जो आप चेक करना चाह रहे हैं। So before starting the work, read the kit instruction manually. तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, अगर आप करना चाहते हैं ये टेस्ट बहुत आसान है, बस आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। नो फोन, बीच में कोई बात नहीं करनी है। 2 बार अगर एक महीने आपने सैंपल डाल लिया तो वैल्यू जो 1 बार आनी चाहिए थी वो डबल हो जाएंगी। किसी का हीमोग्लोबिन 14 है, आपने 2 बार डाल दिया तो 28 दिखाने लगेगा, क्योंकि आपने जो क्वांटिटी है उसको डबल कर दिया। इसलिए बहुत स्पेसिफिक, बहुत आपको क्या होना पड़ेगा, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है। ऑब्जर्व मीन्स आपको जो है केयरफुल रहना पड़ेगा, बहुत केयरफुल रह के फिर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में आपने गलत टेस्ट किया तो आपके 40 to 50,000 रुपये चले जाएंगे एक बार में। किट नहीं काम खरीदो। एक किट में 96 वेल्स होते हैं, जैसे हमने पहले बताया था। लेबल्ड केयरफुली एंड द फर्स्ट वेल इज यूज्ड फॉर ड्रॉ द स्टैंडर्ड कर्व। इसमें जो जैसे ये लिखा हुआ ABCDEFGH और उसके बाद इधर ऊपर लिखा होता है 1 2 3 4 to 12, ऐसे करके टोटल 96 वेल्स होते हैं। तो इन 96 वेल को, इन 96 वेल्स में हम जो पहले के 2 हैं वो स्टैंडर्ड के लिए यूज करते हैं। स्टैंडर्ड मतलब हर चीज की एक ना कोई वैल्यू होती है, कि कोई भी चीज आप चेक करना चाह रहे हैं तो उसकी या तो कुछ मिनिमम रेंज होगी या कुछ मैक्सिमम होगी। तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम रेंज वो कैसे पता चलेगी हमें, वो इस स्टैंडर्ड के जरिए पता चलेगी। एक स्टैंडर्ड हमने बनाया, उसी की बेस पे फिर हम इसको चेक करते हैं। So the sample is added to the plate in a duplicate or triplicate and then mean result is calculated. तो डुप्लीकेट में करते हैं या ट्रिप्लीकेट में करते हैं, या 2 बार सैंपल डालेंगे या 3 बार एक ही अलग अलग सैंपल ये 3 वेल में अलग अलग डाल देंगे। एक जो वेल होता है उसकी उसमें हम 350 माइक्रोलीटर ऐड कर सकते हैं। जो मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी होती है वो 350 माइक्रोलीटर होती है एक वेल की। जनरली हम 100 माइक्रोलीटर ही सैंपल यूज करते हैं। So the quality control sample which is provided with the kit is treated as the test samples. उसके बाद फिर जब ये आ जाता है तो उसके रिजल्ट्स को कैसे एक
ये आपका जो है एक्स एक्सेस हो जाता है और एक वाई एक्सेस हो जाता है। आफ्टर रीडिंग द रिजल्ट द स्टैंडर्ड कर्व इज ड्राउन वेयर द कॉन्सेंट्रेशन इज प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सेस। तो कॉन्सेंट्रेशन है वो वाई एक्सेस पे नैनोग्राम में, पिकोग्राम में है या फिर माइक्रोग्राम में है, किस में है कॉन्सेंट्रेशन, उसी के हिसाब से जो ऑब्जर्प्शन वैल्यू होती है। ये जो है आपका ऑब्जर्वेंस, ये वाई एक्सिस पे ऑब्जर्वेंस जो भी आपकी वैल्यू है वो इस बेस पे एक कर्व ऐसे करके बन जाएगा। बनने के बाद फिर जो सारी वैल्यूज हैं वो या तो 0 से जो भी रहेगा, आपकी जो भी वैल्यू रहेगी उतने तक के रहेगा। अगर ये बाहर चला जा रहा है आपके, मीन्स इट इज लाइक यू डिड समथिंग रॉन्ग, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग आउट। कुछ में हो भी सकता है कि ज्यादा चली जाए, बट अगर बहुत ज्यादा कि एक रेंज के अगर बाहर चला जा रहा है दैट्स मीन कुछ गलत हो गया। इसकी वजह से ये नहीं है। जैसे यहाँ पे ये कर दिया, अभी इसके भी आगे यहाँ जाके यहाँ कहीं कोई वैल्यू आ जा रही है, जैसे यहाँ पे 250 लिया तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जा रही है 550। अब 550 का कर्व कहाँ बनेगा, यहाँ कहीं जाके बनेगा। उसकी रेंज ही इतनी है और ये जा रहा है इतना ज्यादा आगे, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक से नहीं किया, या फिर सैंपल कंटेमिनेट हो गया, या फिर कुछ भी, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सो रिजल्ट काउंट ऐसे करके हम काउंट कर लेते हैं रिजल्ट इसका। ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, एस एक्सेस और वाई एक्सेस पे इसके अकॉर्डिंगली हम अपने रिजल्ट को फाइंड। दिस स्टैंडर्ड कर्व इज यूज्ड टू डिटरमाइन द अननोन concentration of each sample by finding the opposite concentration to the observance। इसके जरिए हम so the quality control sample concentration is determined from the standard curve, and if the result is in the range given by the kit manufacturer, the result could be accepted। वो आप किट में देंगे कि इसकी रेंज क्या होती है, सारे किट में लिखी होती है कि जो भी आप अगर चेक कर मेलेटोनिन अगर चेक करना चाह रहे हैं तो मेलेटोनिन की रेंज उसमें दी होगी कि कितनी होती है। तो आपने चेक किया उसमें मिनिमम कितनी है, मैक्सिमम कितनी है, तो उसी के बेसिस पे आप अपने रिजल्ट को वो कर सकते हैं। तो कुछ वेबसाइट्स के लिंक हैं जिनको जिनसे कुछ कुछ इंफॉर्मेशन मैंने ली है, और अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो ये मैं राहुल जी को ये शेयर कर दूंगा, तो आप इसके ज़रिए आप देख के इस पीपीटी के ज़रिए आप जो भी आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। और so we have 9 minutes, so in 9 minutes I can take the questions. If anybody has any question they can ask. कुछ अगर किसी को पूछना हो। Yes sir, please go ahead, राजेश। सर मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि हम लोग योग के छात्र हैं, जी जी तो ये बहुत टेक्निकल है और इसमें जितना आपने बताया बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मुझे लगता है कि लेमैन के लिए इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती थी, लेकिन फिर भी थैंक मैं यू। समझता हूँ कि जो योग के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड देन आई अज्यूम्ड। सो बिल्कुल इज देयर बिल्कुल। एनी वे कि हम सभी इस पे काम कर रहे हैं, कोई ना कोई बच्चा इसी पे रिसर्च कर रहा है, तो जी जी। हम इसको आउटसोर्स कर लें इस नॉलेज को और हम अपना काम करें और वो जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है वो बाकी काम कर दे। ऐसा हाँ पॉसिबल है हाँ कैसे? बिल्कुल पॉसिबल है, इसलिए हर चीज के लिए कोई ना कोई एक एक्सपर्ट्स होता है। तो अभी जैसे मैंने भी, अगर कोई मेरी रिसर्च है तो मेरा कोई ना कोई गाइड है, सुपरवाइजर है, तो उन्होंने ही मुझे ये टेक्निक सिखाई है। मुझे कोई आती थो ना कि ये टेक्निक, तो उन्होंने मुझे टेक्निक ये सिखाई, तो सीख सीख के मैंने जो है उस पर काम करना शुरू किया। तो बहुत सारी गलतियां भी हुई, वो मैंने सीख लिया। और आप भी ऐसा कर सकते हैं कि आप इफ यू आर इंटरेस्टेड कि भाई आपको ये चेक करना है, तो आप प्राइवेट लेबोरेटरीज हैं, गवर्नमेंट लेबोरेटरीज हैं, उसमें आप तो क्या करना है, आप जाके उनके जो पैथोलॉजिस्ट हैं उनसे बात करिए या डॉक्टर से बात करिए, या जिसके अंडर में आप रिसर्च कर रहे हैं उनसे बात करिए कि सैंपल कैसे कलेक्ट किया जाता है, कहाँ लेके जा सकते हैं, कौन कौन सी किट्स हैं मार्केट में जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, क्या हमारा बजट है उसके हिसाब से, और कौन ये टेस्ट कर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे पैथोलॉजी हैं, जैसे वो जाके आपका टेस्ट कर देंगे आपको अगर चेक करना है, और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो रिजल्ट आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इस रिजल्ट के बेस पे आपने आपकी क्या फाइंडिंग्स है।
क्या क्या आपको समझ में आया? थैंक यू सर, एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू राजेश। Any other student has? Yes, Sushil Bharti ji, please go ahead. हेलो सर। शीतल या भारती जी। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे फॉर्म निकला है इस व्यासा में, तो यहाँ पे कोई भी टॉपिक अगर हमारा रिलेटेड होगा सेल से या कोई भी स्टडी रहेगी तो उसके वो लाइफ साइंस के अंडर आएगा, राइट? करेक्ट तो मैडम। तो उसके लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है वो मास्टर्स आपको मतलब बायो या केमिस्ट्री आपका होना चाहिए। तो अगर हमारा हाँ, बायो नहीं है तो क्या हम उसके लिए जी अप्लाई हो कर सकता है, सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कितनी नॉलेज है। बेसिकली ज्यादातर रीजन ये होता है कि कोई भी अगर कहीं पे भी आप अप्लाई करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं, तो रिसर्च जो सुपरवाइजर होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपको बिल्कुल बेसिक्स बता सकें। कि आपको बेसिक हम्म। पता ही नहीं कि पिपेट क्या होती है, या फिर आपको पता ही नहीं कि जो है सैंपल ही नहीं मालूम कि सैंपल क्या होता है, या सीरम नहीं मालूम कि क्या होता है, प्लाज्मा नहीं मालूम। बहुत बेसिक समय, मतलब इस सिर्फ समझाने के लिए हम्म। बोल रहा हूँ, तो सबको ही पता होता है क्या होता है, बट हम्म। फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए जो है वो प्रेफर करते हैं कि आपको एमएससी या फिर सेम फील्ड में आपको नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आप कितने साल तक आप पीएचडी करोगे? बेसिक सीखने ही अगर जाओगे तो बेसिक सीखने में 1 साल आपका लग जाएगा, तो क्या होगा, आपकी पीएचडी बहुत डिले हो जाएगी। तो इसलिए सब लोग यही प्रेफर करते हैं। रीजन ही उसका यही है कि आपकी एक्सपर्टीज किस चीज में है, जिस चीज में आपकी एक्सपर्टीज है। देखने में बहुत अच्छा लगता है कि भाई हाँ ठीक है, हम लाइफ साइंस में कर रहे हैं या उसमें बायोलॉजी में कर रहे हैं, बट क्या होगा कि उसमें आप 2 साल 3 साल और आपकी पीएचडी डिले हो जाएगी। बहुत सारी चीजें जो बेसिक्स हैं वो नहीं समझ में आएंगी, फिर उसको आप लर्न करेंगे, सीखेंगे, तो उसमें क्या होता है, रिसर्च जो सुपरवाइजर होता है उसका भी टाइम बहुत। अगर आपको अच्छी नॉलेज है, आपको लग रहा है कि भाई आप कर सकते हैं, तो वो लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं लेते हैं, मगर ये डिपेंड करता है कि आप जिस टॉपिक पे करना चाह रहे हैं, कि आपको उसके बेसिक्स क्लियर हैं और कितना आप उसमें इंटरेस्ट है आपको। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि आपकी जिस चीज में एक्सपर्टीज है, जो चीज आपने सालों सीखी है, प्रैक्टिस करी है, जिस चीज में आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, बहुत वाइड है, बहुत चीजों में आप कर सकते हैं पीएचडी। उस टॉपिक को लेंगे, उस टॉपिक को लेने के बाद आप अपने 2-3 साल बचा सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपको बेसिक्स उसके पता है, और उसमें आप कुछ क्रिएटिव कर पाएंगे। बेसिक सीखने के बाद फिर आप क्रिएटिव किसी चीज के बारे में सीख पाएंगे। अगर फॉर एन एग्जाम्पल, एक बहुत आसान सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आपसे कहेंगे कि भाई हाँ बहुत पतले रास्ते से आप निकल के जा सकते हो, बट तभी निकल के जा पाओगे जब आपको ड्राइविंग आती होगी। जब आपको ड्राइविंग ही नहीं आती है तो फिर आपसे कहेंगे कि बहुत बिल्कुल पतले से सकरे से रास्ते से आपको लेके जाना है, तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो और मे भी अगर जिसमें से हमें 5 मिनट लगता है निकलने में जाने के, उसके आपको 15 मिनट लगेंगे। बहुत आसानी से अगर ध्यान से आप अच्छे लर्नर है तो कर सकते हैं। तो इसलिए प्रेफर यही करते हैं कि आपने जो चीज़ प्रैक्टिस की है, इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से आता है, उसमें अगर करेंगे तो हर चीज़ में स्कोप है। चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में आप कर सकते हैं। तो जो आपने जिस चीज़ में मास्टर, क्योंकि 5 साल आपने उसमें दिए, 5 साल में आपने कुछ ना कुछ तो नॉलेज उसमें गेन करी होगी, तो उसमें अगर आप करेंगे तो वो क्या होगी, वो आपकी एक्सपर्टीज है। क्योंकि आप जैसे पूछे आपकी एक्सपर्टीज किस चीज में है, कोई मुझसे पूछेगा तो मेरी एक्सपर्टीज, क्योंकि पीएचडी जो मिलती है वो टॉपिक पे मिलती है, जो टॉपिक आपने लिया है। तो मेरी एक्सपर्टीज जैसे सिकल सेल डिजीज में है। तो कुछ आप किस चीज में एक्सपर्ट हो, तो मैं कहूँगा मैं सिकल सेल डिजीज में एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि उस पर मेरी पीएचडी। तो जो टॉपिक होती है हम उस पर एक्सपर्ट होते हैं। तो जो भी टॉपिक मिलेगा उसके बारे में फिर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सब पता होना चाहिए। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आपको कहना है कि नहीं मैं नहीं जानता इस चीज के बारे में। अगर नहीं भी पता है तो ये भी पता होना चाहिए कि मुझे क्यों नहीं पता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अलॉट सर, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। बहुत सारी नई चीजें हमने सीखी हैं, बहुत अच्छे से समझ में भी आई हैं। तो सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर हम लर्निंग डिसऑर्डर पर काम कर रहे हैं और वह बिल्कुल शुरुआती दौर में हमने देखा अपने सैंपल्स में, इंटरव्यू मेथड से हमको ये पता चलता है कि ज्यादातर में एंगरनेस बहुत ज्यादा है, तो उसको हम, आपने जैसे बताया भी कि है कि हमको कोई ना कोई बायोमार्कर जरूर यूज करना चाहिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो सबसे ज्यादा सुइटेबल कौन सा सर इसमें होगा, एंगरनेस या लर्निंग डिसऑर्डर को देखने के लिए कौन सा बायोमार्कर हमको यूज करना चाहिए? जैसे अगर आप एंगर के हैं तो आप स्ट्रेस के हार्मोन्स जो हैं जैसे कॉर्टिसोल है, एड्रेनलिन है, तो ये क्या है, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स हैं। तो इन स्ट्रेस हार्मोन्स के जो स्पेसिफिकेट्स आते हैं वो आप जो है चेक कर सकते हैं ये। और लर्निंग डिसऑर्डर के बारे में तो आपको फिर ब्रेन से रिलेटेड कोई सी जो है, जैसे BDNF है करके एक बायोमार्कर है, वो ब्रेन ड्राइव न्यूट्रोफिक फैक्टर, तो वो चेक कर सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे जो है टेस्ट जो आप ले सकते हैं, लेने के बाद आप उसको जो है चेक कर सकते हैं कि बिफोर और आफ्टर द इंटरवेंशन के क्या जो है आप क्या क्या चीजें हैं जो आप उसको जो है चेक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जो है पैरामीटर्स हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके रिसर्च क्वेश्चन पे क्या, आपका क्या रिसर्च क्या आपका रिसर्च क्वेश्चन है। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। Namaste, sir. Nice नमस्ते। lecture, sir. थैंक यू मैडम। ओके राहुल जी, तो आप मुझे फिर इजाजत दीजिए। और जी हाँ, जी थैंक यू जैन भाई, बहुत बहुत मजा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला टाइप्स ऑफ एलाइजा। सच में कोर्स वर्क में भी मुझे पढ़ाया गया था, उस टाइम इतना क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन अभी काफी पॉइंट्स मेरे खुद के भी क्लियर हो गए। थैंक यू अनीता जी, थैंक यू शालिनी, थैंक यू सो मच जैन भाई, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते। बाकी सभी बने रहेंगे फिर बस।